आर्ट्स, जहाँ आप पेरेंट्स को देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन जहाँ केतकी मैम इन्वॉल्व है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये 5 डिपार्टमेंट हैं जो हम लोग रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल मिलाकर के 210 बच्चों के एडमिशन करेंगे दिल्ली में। ऐसे 10 फैसिलिटीज इंडिया में क्रिएट होंगे, जिसमें से पहले 5 हम लोग जो है अप्रैल तक लॉन्च करेंगे, बाकी के 5 हम लोग सितंबर में लॉन्च करेंगे और 5 हम लोग इंटरनेशनल कैंपस। ये सारे कैंपसेस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में स्किल इंडिया मिशन के तहत बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों को 2 साल का कोर्स दिया जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटीज में जहाँ हमारा मॉडल है वहाँ पे उनके पास में 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। तो यहाँ दिल्ली में होगा वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, 1 साल की ट्रेनिंग है, 6 महीने का इसमें लाइव प्रोजेक्ट है और 6 महीने का पेड अप्रेंटिसशिप है। इसमें हम लोग बच्चों को एश्योर कर रहे हैं कि उनको अप्रेंटिसशिप के दौरान मिनिमम 35 से 50 हज़ार का स्टाइपेंड मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो ऑनलाइन एग्जाम पहले उनको देना होगा, फिर उनका पोर्टफोलियो रिव्यू है, उसके बाद में एक राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। So well said. मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। So what is your role in this? So as he said, under the IICS, which is the Indian Institute for Creative Skills, there's a department of performing arts. उसमें dance आता है, there's acting, there's singing, which is on other fields. But I'm going to be taking part of the performing arts. Or I've already had my institute for 25 years. One of the best things about our institute, we have trained a lot of people जो हमारे से सीखे हैं और दिल्ली में भी कई सारे institute हुए हैं. The idea is to formalize their training. The idea is to kind of certify them through the government. So that there is a certain amount of dignity and a certain amount of opportunity that is being created for them so that they can go out and take over their life. Because ये जो skill sets है ना, mostly like when you see anybody choosing a career like engineering or medicine or lawyer or teacher, they are very controlled by a certain amount of universities and formats in which you can go to the classroom and get through. But these are all creative skills where there is no formalization of these courses or the job opportunities come along with it. So the idea of MESC and the government, also Mr. Modi government, is that we want to take these unorganized sectors and make them more organized, give them more credibility and give them more opportunities. So with this regard, our training also is involved to teach them skills that can help them become independent financially and also get the skills that they require, because without the skill sets you cannot teach, right? So unfortunately there are not enough codified, structured bodies that can actually teach. Everybody is doing it on the book. And you are giving international exposure also? International exposure will come a little later, but right now we want to make sure that they are independent financially here itself. International exposure can happen because we are internationally connected. So I teach at the festival in Vienna, which has got 110 teachers of the best, and I am one of them. So for 20 years I've been teaching it. This year also they've invited me. So I'm on the panel. So getting teachers internationally is easy. वहाँ पर जैसे हमारे shows होते हैं, I've taken 2 or 3 kids also from my institute to participate, and they have won the contest there. So they have got that international exposure. But we're also looking at more stability back at the end of the day. You have to also work here and be able to provide for yourselves. So the idea of MESC and IICS is that we want to kind of the unskilled sector, make it more skilled, give them more credits, at the same time give them more opportunities. और किसी का कोई सवाल? करिकुलम के बारे में। करिकुलम में हम लोग यहाँ पे जो अभी तक हमने देखा है कि मेटा और गूगल जो है वो या तो आपको कैसे उसका एल्गोरिथम वर्क करता है वो सब सिखाता है, टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे हम बना रहे इन्फ्लुएंसर्स, राइट? सो डिजिटल इन्फ्लुएंस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली ग्रोइंग डे बाय डे, और हम उनको दोनों ही चीजें सिखा रहे हैं, हाउ टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, how to monetize your product, your services, or how to build your own brand which can make money digital. So that is what whole the idea of digital content creation is. Sir, what about certification? तो जो सर्टिफिकेशन है वो क्योंकि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल अपने आप में एक अवॉर्डिंग बॉडी है, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन होता है जो बच्चे को मिलता है। और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क देखें तो इनको इक्विवेलेंस मिल रहा है फॉर्मल एजुकेशन के साथ में, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जरूर है, पर बच्चे के पास में अपॉर्चुनिटी है मोबिलाइज करने की बिटवीन स्किलिंग टू फॉर्मल एजुकेशन।
सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बोलते हैं कि हम आपका चैनल मोनेटाइज कर देंगे ये वगैरह, तो उन लोगों को उनकी मदद लेनी चाहिए या नहीं? चैनल मोनेटाइज तो कंटेंट बेस्ड होता है, तो अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज नहीं, वो क्रिएट कुछ नहीं करते, लेकिन अगर उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उनके व्यूज बढ़ा देते हैं, लाइक्स बढ़ जाते हैं, मोनेटाइज भी हो जाता है। वो प्रैक्टिस करता होगा, पर हम उसमें बिलीव नहीं करते, अच्छा, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बिकॉज हम उसको ना प्रमोट करते हैं ना हम उसको बिलीव करते हैं। सर ये इसमें जो भी कोर्सेज हैं ये 6 मंथ के लिए, नहीं, जो दिल्ली में हम लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं 2 साल के हैं। इसमें 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 6 महीने लाइव प्रोजेक्ट और 6 महीने अप्रेंटिसशिप। यही जो कर्नावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है वो डिग्री प्रोग्राम है। जो चंडीगढ़ में हम ऑफर कर रहे हैं वो भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और सर ये जो एडमिशन रहेगा वो एनुअली रहेगा या? इसमें हम लोग 2 इंटेक्स करेंगे। एक इंटेक जो है वो हमारा जून से शुरू होगा एक बैच, और एक बैच हमारा जनवरी से शुरू होगा। सर स्किल के लिए उसकी क्वालिफिकेशन बेस क्या है आपके यहाँ? देखिए, हमारा मानना है क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे जिनको हम यहाँ पे सिलेक्ट बेस्ट सिलेक्शन हो, बेस्ट सिलेक्शन क्या आपका मायने क्या बेस्ट? तो मान के चलिए जैसे आज की तारीख में हम लोग किसी को क्रिएटिव आर्ट्स में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में लेना चाहेंगे, तो हम ये जरूर चाहेंगे कि उस बच्चे का पहले से बैकग्राउंड, पहले से रुचि उस क्षेत्र में रही हो। अगर वो मान लीजिए उसके पास उसका कोई पोर्टफोलियो है तो वो हमारे लिए काफी मायने रखेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू हमें जानकारी मिल जाएगी पूरे तरीके से कि क्या ये बच्चा उस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का कोर्स है और 1 साल का लाइव प्रोजेक्ट और अप्रेंटिसशिप है। लेकिन जब डिग्री प्रोग्राम है तो फिर भी हमारे पास में 2 साल है उसको ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं भाषा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अदर लैंग्वेज के भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो क्या आप सभी भाषाओं में जो गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से भी उन्होंने पार्ट को रखा है इसमें, तो आप क्या उसके एक ही पार्ट को लेके चलेंगे, इंग्लिश को लेके चलेंगे, हिंदी को लेके चलेंगे, या देखिए आज की तारीख में कॉमन स्पोकन लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश ही है, और हम लोग ट्रेनिंग जो होगी वो उसी लैंग्वेज में होगी। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट है जो रीजनल बेंच से आ रहा है और उसको थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस लगा के कम्युनिकेशन की क्लासेस हम लोग जरूर लगवाएंगे। अगर बहुत बड़ा इसमें आने वाले सेक्टर अभी आप जैसे बता रहे हैं, सेक्टर को स्किल मिलेगा, वो ऑर्गेनाइजर हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइज होने में तो उसको मिनिमम टाइम भी तो उसको लगेगा। आप कह रहे हैं 2 साल 3 साल, तो उसके बाद प्लेसमेंट क्या आता है उसके बाद? देखिए, मुझे नहीं लगता है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी बच्चे को प्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला हिंदुस्तान की बेस्ट क्रॉप को लेने वाले हैं, और जो ट्रेनर्स हैं, जो करिकुलम है, जो प्लेटफॉर्म हम उनको दे रहे हैं, उसके बाद में इंडस्ट्री के लिए ये बेस्ट क्रॉप होगी जो आज तक दिखी हो, और वो बच्चे के ऊपर निर्धारित होगा कि वो वाकई में जॉब लेना भी चाहता है या नहीं, या वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है। तो मुझे जहां तक लगता है इस कोर्स के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा सच में जॉब करना चाहेगा। और आप देखेंगे कि इंडिया में इतने सीजन एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, इतने सीजन क्रिएटिव टैलेंट निकलेगा, जो मुझे शायद कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनली भी मेरी नॉलेज में है जहां पे ऐसे मेंटर्स, ऐसे एक्सपर्ट्स आकर के क्लासेस कराएं। देखिए, विजिटिंग फैकल्टी होना, एक वर्कशॉप होना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रूटीन में इंडस्ट्री मेंटर्स का ट्रेनिंग के लिए आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ज्यादा टेक्नोलॉजी बात वो करें, डे बाय डे खुद अपना चैनल बनाएंगे तो खुद डे बाय डे डिफरेंट होती चली जा रही है, बहुत क्रिएटिविटी आती चली जा रही है, एआई का बहुत ज्यादा प्रयोग होता चला रहा है। तो आप ये बताएं कि अगर वो हर साल, हर 2 महीने डेली बेस पे भी चेंज होती चली जा रही है टेक्नोलॉजी, इसमें तो भी एक ही स्टेप पे आएगा आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट होती चली जा रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमेशा से एनेबलर है। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी तब हम लोगों के तब भी व्यूअर्स ज्यादा थे। आज हमारे पास में एलईडी है, मोबाइल फोन है, तो टेक्नोलॉजी ने उसको एक डिफरेंट डिस्ट्रक्शन पे लेके गए। तो सडनली टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एनेबलर है, और मुझे नहीं लगता कि मीडिया सेक्टर के लिए या मीडिया इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी कभी भी चैलेंज रहा है। आज जो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आप मोबाइल से कर रहे हैं, पहले एक जमाना था जब हम लोग बड़े बड़े कैमरे से करते थे और उसके बाद टेप में ले जाया जाता था। तो अब आप देखिए कितना इजी हो गया। आज कोई भी गांव में बैठा हुआ कम्युनिटी जर्नलिस्ट का कोर्स करे तो वहां से डायरेक्ट वायर कर सकता है न्यूज़। तो उस तरीके से देखिए, तभी कारण है कि मीडिया आज सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में। अभी लास्ट वीक की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि क्रिएटिविटी यूनिवर्सिटी मुंबई में खोलेंगे, उन्होंने जमीन भी ले ली पुणे के आसपास। तो क्या यूनिवर्सिटी एक साल में खुल रही है? बहुत बड़ा स्केल। देखिए, अभी हर एक स्टेट के अंदर हम लोगों ने MESC ने
मिल करके एबीजीसी पॉलिसी का गठन किया है और हर एक स्टेट के अंदर अब हम लोग कैंपस में डाल रहे हैं, हर एक स्टेट के अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। तो हर गवर्नमेंट एग्रेसिवली काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि अब ये सब सिर्फ कहने के लिए कागजों पे है, बल्कि रियल में आप देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स आपको कई स्टेट्स में ये चीजें होती हुई दिखेंगी। और करिकुलम का भी ना इट्स इंडस्ट्री ड्रिवन है, तो जैसे टेरेंस है, ही ऑलवेज कीप इवॉल्विंग हिज ओन एंड अपडेटिंग हिज ओन करिकुलम एंड हाँ करेक्ट। तो वो तो हमेशा फायदा ये रहता है कि ऐसी इंस्टीट्यूट जो रहती है वो दुनिया के साथ चलती है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वी हैव अ यूएसपी। ओके, थैंक यू। जो लास्ट बात सर ये मेन सिटीज के अंदर ही है या फिर छोटे लेवल पे ये इस पे कुछ काम किया जाए? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स जो है ये एक बहुत ही प्रीमियम पोजीशनल ब्रांड है और सर्टेनली क्योंकि यहाँ पे हमें इंडस्ट्री के बेहतरीन ट्रेनर्स चाहिए हैं और हमें देखना होगा कि उनके लिए कंपटीशन इजी हो, तो पहले फेज में हम लोग इसको सिर्फ मेट्रोज में डाल रहे हैं, लेकिन सेकंड फेज में हो सकता है कि हम लोग कुछ टीयर 3 और टीयर सी सिटीज के अंदर भी सर फीस क्या रखी है आपने? सर इसका 6 लाख रुपया सालाना फीस सभी के लिए या सभी डिपार्टमेंट कॉम्बिनेशन में या आपके को बेसिक में? 6 लाख रुपया पर ईयर हम लोगों ने फीस पर ईयर। थैंक यू। ओके।